Okay, so yesterday we were talking about Negotiable Instrument Act. We have discussed one instrument, that is promissory note. In case you have any doubt, just let me know. Else I am going to start another instrument, that is bills of exchange. Okay, yes. I hope my screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay, Yes, fine, ma'am. fine, fine. So we have discussed promissory note. I believe this is clear. It is something as a promise made by a person who is saying, I promise to pay you this amount onto this time. So how we have to read it, how we have to do it? It is Ram who has taken amount from Psycho, that is 10,000, and Ram is promising, yes, I will make a payment from this date after 3 months, this amount. So Ram is a promiser, right? Ram is a maker who is saying, yes, I will make you a payment. And this person is a payee who is going to get the payment after 3 months. Okay? Yes. So any doubt in promissory note, please let me know. Else, I'm going to start another topic, that is bills of exchange. For today's, we will only be talking about bills of exchange. Yes. Do you want to ask any question? मैम एक बार इंडोर्सर और इंडोर्स ही बता दीजिए। ओके जब ये जो प्रोमिसरी नोट है, नॉर्मली इट इज़ बिटवीन टू पार्टीज जो है, एक मेकर है जो कि लिख रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो पे करेगा, और दूसरा इज पेई। बट जब ये पेई अपनी पोजीशन यूज़ करता है ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, तब ये पेई को हम इंडोर्सर बोलते हैं। इंडोर्सर का मतलब होता है जिसने अपना राइट एक्सरसाइज किया ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर साइको सोहन को कहता है कि आई विल पे यू, राइट, आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ्स, या इसको एज ए नेक्स्चर यूज़ करके ये करता है कि मेरे को जो है, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपको राइट दे रहा हूँ, आप क्लेम करेंगे ये अमाउंट। तो साइको इज ए इंडोर्सर, सोहन को दे दिया तो सोहन जो है इंडोर्सी बन गया, जिसके नाम पे वो नोट चला गया। सो दिस इज द राइट व्हेन साइको इज गोइंग टू एक्सरसाइज। ओरिजिनली तो क्या है, मेकर एंड पेई, राइट। तो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो होल्डर भी है, तो साइको को हम पेई भी बोलेंगे और होल्डर भी। अगर साइको अपना एक एक्सरसाइज करता है राइट, जिसमें वो है कि अगर किसी को थर्ड पर्सन को वो ट्रांसफर करता है यही वाला नोट, तो दैट इज यूजिंग द राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। तो जब राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी यूज होगा तब पार्टी इज कॉल्ड एंडोर्सर, और जिसको किया गया है, जिसको फेवर में वो दिया गया है, दैट इज एंडोर्सी। So it is like this, yes. Person who endorses the note to another is called endorser, and whose favor the note is endorsed is called endorsee, right? So originally payee जो है, payee can be holder, payee can be endorser, right? But payee is, if he is holding till the last, he is holder. If he is not holding it, he is using the right to transfer, he is endorser. So payee may be holder at one point of time और मे बी इंडोर्सर, बोथ आर नॉट पॉसिबल। अगर आज कहें कि पेई होल्डर है तो इसको होल्डर तभी कहा जाएगा जब उसके पास वो डॉक्यूमेंट है, जब उसके पास वो नोट है। द मोमेंट वो ये यूज करता है राइट टू ट्रांसफर, तब वो पेई होल्डर नहीं बनेगा, तब पेई को एंडोर्सर कहेगा। सो पेई विल बी एंडोर्सर ओनली व्हेन ही एक्सरसाइजेज हिज राइट टू ट्रांसफर, otherwise pay is a holder, otherwise pay is a holder. So understand the difference. When we talk about payee as a holder, it means he is holding that document. The moment expiry date comes, he will go to bank and encash it, वो holder रहेगा। बट द मोमेंट पेई इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट, जब वो ये कहता है कि नहीं मैं आगे थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ वो, तो पेई होल्डर ना होके एंडोर्सर कहलाएगा, और जिसको दिया गया है वो नोट वो एंडोर्सी कहलाएगा बच्चे। ओके मैम। Any other doubt? Let us talk about bills of okay, fine, fine, right, right. Let us talk about bills of exchange today. Now, promissory note is defined under section 4 of Negotiable Instrument Act. Bills of exchange is defined under section 5 of
It is under section 5 of Negotiable Instrument Act 1881, right? So what it is now, please understand, this is the second instrument where a person who is writing down the bill is giving a promise कि I'll pay you, that is promissory note. Where a person is directing you have to pay, right? Directing you have to pay this amount to this. So it is like bills of exchange is a director's order, right? There are three parties. One is A is saying to B, you have to make the payment to C. So A, B and C are part of this bills of exchange. डिफरेंस क्या आया वो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज एन ऑर्डर गिवन बाय ए टू बी टू मेक द पेमेंट टू सी. Okay, so there are three parties involved. So it is an instrument, definitely in writing, very, very important. When I use this word instrument, again I would be talking about negotiable. Negotiable, why? Because it is transferable n number of times. It is in writing, why? Because law is going to approve only these notes, exchanges, bills, vouchers, hundis in writing, containing an unconditional order. Now understand this. So A is giving an order to B without any condition. कोई स्टिपुलेशन नहीं. ए ये नहीं कहेगा कि तुम्हें सी को देना है अगर तुम्हारे पास ये हो जाए, अगर तुम्हारा बिजनेस चल जाए, अगर तुम्हारी ये सेल पॉसिबल हो जाए, अगर तुम्हें ये ऑर्डर मिल जाए. अगर वर्ड इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन एनी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. सो ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं आपको तीन मेजर पढ़ाने वाली हूँ, या इसके अलावा भी अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हुंडीज होती हैं, सब के सब अनकंडीशनल. देयर इज नो कंडीशन अटैच. कुछ होने के बाद कुछ फुलफिल होगा तभी ये ऑर्डर माना जाएगा, वो वैसा नहीं है, राइट? सो इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. दैट मीन्स दिस इज द पर्सन हु इज कॉल्ड मेकर. जो बना रहा है इस बिल को, उसको हम मेकर भी बोलते हैं, उसको हम ड्रॉर भी बोलते हैं. ये मैं तीनों पार्टीज आपको समझाऊंगी. इसमें तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई. यस, ड्रॉर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, ड्रॉर ऑर्डर देगा. ड्रॉर इज ए पर्सन हु इज राइटिंग डाउन द बिल. नंबर वन, he is giving the instruction to another person to make the payment. So sort of drawer is a guarantor. ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्रॉर एक मीडियोकर पर्सन है कि अगर बी पेमेंट ना कर पाया तो ए को करनी पड़ेगी. एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेकेंडरी, राइट? सो ए इज ए ड्रॉर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. किसी पर्सन को डायरेक्ट करेगा, यानी कि किसको किया? ए क्या है? मेकर. किसको डायरेक्ट किया? मुझे बीच में जस्ट ए मिनट, प्लीज बी ऑन टाइम. many times I have repeated, I have to scroll down my screen. एक्चुअली पीपीटी में जब मैं आपको समझा रही हूँ तो मेरी एक विंडो खुली है. I have to take a tab help, I have to open this screen, I have to get you admitted. It's not only for Sushmita, it's for everyone. Be on time. I wait for you for 4 to 5 minutes. I'll just start after 9:35. Anyways. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Okay, so where I was, like, it is basically having three parties contract. So it is drawn by maker, it is written by maker, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन. किसी पर्सन को वो डायरेक्ट करेगा, किसके लिए? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, राइट? बी को बोलेगा कि पे करना है, और टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सो या तो ऑर्डर पेमेंट होगी, सी को देनी है या किसी बेयरर को देनी है. सो इट इज लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनकंडीशनल ऑर्डर. अब आप कहेंगे प्रोमिसरी नोट, अनकंडीशनल प्रॉमिस. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनकंडीशनल ऑर्डर. प्राइमरीली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होना जरूरी हैं, राइट? वो अपनी तरफ से, जैसे मैंने आपको सेल की है ना, तो मैं भी तो एक बिल ड्रॉ करके दूंगी. आई विल ड्रॉ ए बिल कि मुझे आपसे इतनी पेमेंट लेनी है. सो आप जो मुझे ड्रॉ करके दोगे, अगर आपने मुझे पेमेंट करनी है तो आप प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करके दोगे.
मुझे आपसे अमाउंट लेनी है तो आई विल बी ड्रॉइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. लुक एट दिस, राइट. विकास, प्लीज अंडरस्टैंड, विकास इज राइटिंग टू निश्चय, राइट. निश्चय को पेमेंट देनी है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा भी होगा कि विकास इज ए ड्रॉर, वो लिख रहा है बिल किसको, निश्चय को, एंड ड्रॉर ये क्या है, ड्रॉई, राइट. कि 3 months आफ्टर डेट पे टू मी. प्लीज अंडरस्टैंड, विकास जो है यहाँ पे निश्चय को डायरेक्ट कर रहा है कि तुम्हें मुझे पे करना है. तो विकास ड्रॉर भी हो गया. प्लीज बी ऑन टाइम. हाँ, प्लीज बी ऑन टाइम. 20-25 मिनट्स की क्लास के लिए मत आया करिए. अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग ओनली द सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग माई प्रिंसिपल्स ऑल्सो, राइट. The moment you will be masters, you will come in the category of maturity. You will come in the category of matured behavior, right? So I'm not teaching only law. I'm not teaching only content. By this virtue, I'm transferring my intake of principles or knowledge or discipline or ethics to you, so that you can lead your life with principles. I always say to my students, especially when it is masters and PhD students, that don't make such rules which you cannot follow. Simple rules to be followed is enough for the life. I have to scroll down my screen, I have to switch it, and the moment where I am going to teach, that aura is disturbed. Please be on time. You guys are very mature. I don't know why I am saying this today, because it's been almost 2.5 months that I am taking your classes, and you guys are perfectly okay. Like I appreciate this MBA. My MBA second year, I always appreciate you guys in front of your seniors. You guys are good and performing good. Okay. Okay, fine. So please understand, this is one format of bills of exchange. Vikas is saying you pay to me or my order sum of this amount for value received. So Vikas is a drawer as well as payee, and he is directing निश्चय to make a payment. So निश्चय को direct किया जा रहा है कि तुम्हें मुझे देना है, right? So विकास is instructing to निश्चय. विकास एक मेकर भी हो गया और उसी को पेमेंट देनी है, यानी कि कोई और नाम नहीं दिया, थर्ड नेम नहीं है, तो ड्रॉर एंड पेई आर वन. सो इट इज ड्यूली साइंड बाय विकास, इट इज एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. निश्चय इसको एक्सेप्ट करे कि यस. सो एक्सेप्टेंस के बिना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं माना जाएगा. सो विकास के इंस्ट्रक्ट करने से काम नहीं चलेगा अंटिल इट इज एक्सेप्टेड बाय निश्चय. So understand that this is very simple format of bills of exchange. It may be complicated. Complicated कैसे? विकास किसी को इंस्ट्रक्ट करे, विकास कहे कि 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, इसकी जगह पे वर्ड आ जाए पे टू श्याम. विकास विल बी ड्रॉर, श्याम विल बी पेई एंड निश्चय विल बी ड्रॉई. विकास इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू निश्चय. विकास इज ए ड्रॉर, निश्चय इज ए ड्रॉई. ड्रॉई का मतलब कि जिसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि तुम्हें पेमेंट करनी है. किसको करनी है? शाम को. शाम विल रिसीव द पेमेंट, वो पेई है. तो तीन पार्टीज के नाम आ जाएंगे. लेट मी शो यू दैट फॉर्मेट ऑल्सो. लुक एट दिस. जनरली देयर आर 3 parties which I was focusing on. Person who issues the bill, the person who writes the bill. Issues का मतलब क्या होता है? Who writes the bill is a drawer. So drawer can be maker, right? In simple word you can say he is the maker of the bill. The person whom the bill is issued is a drawee. That means this is the person who is responsible to make payment. Who is responsible to make payment.
एंड पेई, डेफिनेटली पेई तो जैसे हमने प्रोमिसरी नोट में किया था, द पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड, सो ही इज ए पर्सन हु इज गोइंग टू गेट द पेमेंट, ही इज ए होल्डर until he exercise his right of endorsement. कर सकता है. Originally it is delivery. Drawer ने instruction दे दी ड्रॉई को to make the payment, so it moves like this. Here drawer and ड्रॉई passing of instruction. ड्रॉई and pay passing of payment. Is it clear? Any student having any doubt? Somebody? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. So now it is clear. So there are drawer who makes the bill, drawee who is directed to pay, payee to whom the payment is made, and most important, drawee has to accept the bill. Acceptance के बिना it is not valid. So when he accepts the bill, he is called acceptor, right? Drawee has to accept the bill. If he will not accept it, this bills of exchange is not legal, not valid in the eyes of law. Okay. What are the features of bills of exchange? Amount must be certain. This is something of repetition, right? Payment must be made in money. Yes. Money means respective currency. मैडम मेरा एक डाउट है. हाँ बोलिए. ड्रॉई और पेई जो है वही मतलब मेन है और ड्रॉयर वो मीडियम मतलब एक्ट करता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल. मेन तो ड्रॉर है. मैं आपको बताऊं, दोनों मतलब ड्रॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर ये पार्टी पे नहीं कर पाती है तो अल्टीमेटली इसको पे करना पड़ेगा. तो लेट्स ओके. हाँ हाँ बिल्कुल. अगर ये विकास लिख रहा है निश्चय को कि शाम को पे करना है, निश्चय जब नहीं पे कर पाएगा तो विकास को देना ही पड़ेगा शाम को पेमेंट. ओके. थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके ओके ओके. Payable amount must be on demand or at a specified period of time. So bills of exchange may be of demand. मतलब अगर आपने आज दिया है तो it may be of tomorrow or 7 days or maximum to maximum it may be of 3 months. 90 days का एक टेन्योर रहता है, उससे ज़्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं होते. तो ऑन डिमांड का मतलब है कि आपको उसी टाइम प्रेजेंट करना है जब आपको देना है. कुछ टाइम आपने डाल के दिया तो इट इज़ लाइक expiry date of 2 months, 3 months, right? So it may be drawn either on demand or after a specified period. So certain bills are drawn immediately. आपने प्रोडक्ट लिया, आपने देखा होगा EMI सिस्टम. देखिए कभी आप लेकर आते हो, कोई भी वॉशिंग मशीन लेकर आ रहे हो या ओवन लेकर आ रहे हो, उनके रेडीमेड इम्प्लाइड बिल्स होते हैं कि जो डाउन पेमेंट की तरफ आएगा वो पेमेंट करके ये वाला बिल ड्रॉ हो जाएगा. सो सर्टेन बिल्स आर ड्रॉन इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट. कुछ बिल्स जो हैं थोड़े टाइम के बाद ड्रॉन होते हैं. वो एक प्रोसेस बन के आता है कि यस हेड ऑफिस से अप्रूव होगा, इतनी लिमिट सैंक्शन होगी, उसके बाद बिल बनेगा. सो बिल्स मे बी ड्रॉन आइदर इमीडिएटली और आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, राइट. नेक्स्ट इज आइदर टू बेयरर और ऑर्डर. बेयरर का मतलब है कि आपने ऑप्शन दे दिया कि कोई भी किसी के हाथ में भी है वो बिल, वो इन कैश करा सकता है. अगर आपने उसको अकाउंट पे ही टाइप बना दिया, आपने उसका ऐसे लाइन लगा दी, तो जिस पर्सन का नाम है, जो अकाउंट नंबर मेंशन है, जो एड्रेस मेंशन्ड है, सिर्फ उसी पर्सन को वो अमाउंट मिलेगी. सो ऑर्डर इज मोर ऑफ सेफ्टी, राइट. जिसका नाम, जिसका एड्रेस, जो चीज़ आपने मेंशन कर दी, बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो चेक करके उसको देगा पेमेंट. बेयरर में जिसके हाथ में भी वो बिल है वो इन कैश करा सकता है, जस्ट लाइक प्रोमिसरी नोट. ओके, यस. सो लुक एट दिस. यस, नाउ इट इज 3 parties. This much amount, where it is drawn and date, 5 months after date, pay Sanjeev. संजीव इज द अल्टीमेट पेई. हाँ, किसको पे करना है? संजीव को. कितना? 30,000, राइट. राशिद लिख रहा है बिल. राशिद इज ए ड्रॉर, राशिद इज ए मेकर.
एक्सेप्टेड गोविंदा, गोविंदा ने ये एक्सेप्ट किया, किसको, किसके नाम पे ड्रॉ किया था, गोविंदा के नाम पे, तो इट इज ड्रॉई। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली संजीव को कहा है पे करने को, तो संजीव इज पेई। तो राशिद, गोविंदा एंड संजीव। राशिद बिल लिख रहा है तो ही इज ए मेकर, गोविंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन कि तुम्हें पेमेंट करनी है, तो राशिद इज ए ड्रॉर, गोविंदा इज ए ड्रॉई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट संजीव इज ए पेई। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. So very important, I have discussed all the features, only this feature I wanted to discuss. It is like this, it is order to pay, instruction है ये। Drawer is not requesting, drawer is not in a form I shall be highly obliged if you make to convenient pay to this. It is wrong, completely wrong. You are just giving instruction. So please pay ₹5,000 to the order of P, यानी कि P को दो या P जो उसको ऑर्डर कर दे उसको दो, तो दिस इज राइट। सो यू आर नॉट इन ए रिक्वेस्टिंग मोड, ड्रॉर इज नॉट in a requesting mode, drawer is giving an instruction to drawee to make the payment. Okay, so it is not at all request, ये सिर्फ और सिर्फ order to pay money. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, now I wanted to talk about this. What are the difference? There are simple differences also, which I would be just talking in a nutshell manner. See, number of parties. Yes, who will explain this point? Anyone from you? Yes, number of parties, first difference, या meaning definition वो मैंने include नहीं किया। Who will explain this? Unmute yourself and say. मैम मैं कल एब्सेंट था, तो प्रोमिसरी नोट में थोड़ा मतलब डाउट है। ओके ओके ओके, तो मेरे से समझ लेना, हाँ, कभी भी जब। ओके ओके मैडम। Let me explain then. Promissory note में there are two parties, maker and payee, right? Primarily maker वो जो बिल नोट प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे वाला मेकर, और जिसका नाम लिख दिया है वो पेई, जिसको पेमेंट देनी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया है। ड्रॉर एक मेकर है जो एक बिल को लिख रहा है लीगल लैंग्वेज में, वो एडवोकेट भी हो सकता है, वो बैंकर भी हो सकता है, वो एक कंपनी का एक सीए भी हो सकता है, एनीवन जो एक बिल लिख रहा है, राइट? जिसको वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो ड्रॉई है, और जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेई है। प्रॉमिस और ऑर्डर, प्रोमिसरी नोट इज प्रॉमिस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर। प्रायर एक्सेप्टेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेकर जो है वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, आई प्रॉमिस टू पे यू दिस अमाउंट, सो एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड देयर बाय ड्रॉई। अगर ड्रॉई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट वैलिड एंड लीगल। मेकर की यस, प्रोमिसरी नोट में मेकर ही तो कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे यू, तो उसकी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बिल लिख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी है, वो तब पे करेगा व्हेन ही इज एक्टिंग एज ए गारंटर। अदरवाइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ड्रॉर क्या है, ड्रॉई को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि तुम्हें पेमेंट करनी है, सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, ड्रॉई की। सेकेंडरी हो सकती है ड्रॉर की। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, रिलेशन, ओके। हियर प्रोमिसरी नोट में वो प्रॉमिस कर रहा है पेई को कि मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें इतनी अमाउंट इतने टाइम के बाद दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे, राइट? तो इट इज इमीडिएट रिलेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, इमीडिएट रिलेशन विद द पेई, मतलब जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है उसके साथ उसका एक डायरेक्ट इमीडिएट रिलेशन है। यहाँ पे जो बिल लिख रहा है जरूरी नहीं है उसका रिलेशन पेई के साथ हो,
वो तो ऐसा भी हो सकता है उसका रिलेशन ड्रॉई के साथ होना ज़रूरी है जो उसको एक्सेप्ट करेगा। ड्रॉई एंड पेई का डायरेक्ट रिलेशन होना ज़रूरी है, बट ड्रॉर एंड पेई हो सकता है आपस में जानते भी ना हो। सो ड्रॉर एंड पेई आर नॉट इन इमीडिएट रिलेशनशिप इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ड्रॉर को सिर्फ काम है बिल लिखना और ड्रॉई से एक्सेप्ट कराना, दैट्स ऑल। पेई को जान रहा है, पेई को पहचानता है, पेई को करता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ड्रॉर सिर्फ एक बिल लिखेगा। जैसे एक कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, सीए है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्रेडिट सेल के, उसके बेसिस पे वो एक बिल ड्रॉ कर देगा और कंपनी को भेज देगा, कंपनी उसके ऊपर स्टैंप लगा देगी। जरूरी नहीं है वो सीए सारे पेई को जानता ही हो। सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉर एंड पेई इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट यहाँ क्योंकि ड्रॉर है ही नहीं, मेकर है, मेकर अपने आप प्रॉमिस कर रहा है, तो इसका मतलब वो पेई को जानता ही है। राइट? क्लियर? यस मैम। ओके। अगर आपका प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब होता है आपका बाउंस बैक हो गया, देयर वाज नो मनी बाउंस बैक। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो उस पर बैंक जिसके पास वो गया है, पेई गया वो प्रोमिसरी नोट लेके कि मुझे पेमेंट दे दो, आपके अकाउंट में नहीं है, तो बैंक उसको ऊपर स्टैम्प करके कर देगा डिसऑनर, दैट मीन्स पेमेंट नहीं है। तो नोटिस बताना पड़ेगा मेकर जिसने ड्रॉ किया है, टू द मेकर एंड नॉट नेसेसरीली, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रोमिसरी नोट इज प्रॉमिस, तो उस केस में पेई स्यू डायरेक्ट कर सकता है। पेई को नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा डिसऑनर हो गया है, आपने प्रॉमिस किया था, आपका डिसऑनर हो गया, तो इमीडिएट एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट यू। बट यहाँ पे नोटिस देना जरूरी है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो लिख रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ही इज जस्ट इन्वॉल्व एज ए मेकर। तो जितने भी होल्डर्स हैं उन सबको नोटिस जाएगा, पर्सनली नोटिस जाएगा कि आपका डिसऑनर हुआ है, एंड देखना पड़ेगा किसकी वजह से हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे तो मेकर ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेकर को नोटिस नहीं भी दोगे तो एक्शन ले सकते हो। बट यहाँ पे 3 पार्टीज आर देयर, पेई ड्रॉई को भी एक्शन ले सकता है, ड्रॉर को भी, तो पहले उसको नोटिस भेजेगा कि आपका जो है ये डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब है पेमेंट वॉज नॉट ग्रांटेड बाय द बैंक। इज इट क्लियर? यस मैम। Okay. Payable to bearer. Promissory note cannot be drawn to bearer. Two parties' name must be specific. मेकर जो प्रॉमिस कर रहा है और जिसको वो कर रहा है, पेई आगे इंस्ट्रक्ट कर सकता है, पेई उसको एज ए नेक्स्चर लगा सकता है कि मुझे आगे फर्दर पेमेंट करनी है, तो ये वाला प्रोमिसरी नोट जो है आगे वो इन कैश कर लेगा। तो नेक्स्चर या टू करके नाम आएगा नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोमिसरी नोट के टाइम पे। लुक एट दिस स्लाइड। यस, अगर इसने साइको ने पेमेंट सोहन को करनी है तो इट हैज टू बी मेंशन्ड क्लियरली, अदरवाइज राम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड साइको ओनली, कि राम ने पेमेंट करनी है साइको को। सो अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाए तो सोहन कैन नॉट क्लेम द पेमेंट अंटिल हिज नेम इज क्लियरली रिटन, राइट? बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इट इज क्लियरली मेंशन्ड, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट टेक दिस, यस कैन बी डन, बट इन केस ऑफ पेबल ऑफ बेयरर ऑन डिमांड इट इज नॉट ड्रॉन। अगर आपने बेयरर वर्ड लिखा है तब तो इट इज नॉट ड्रॉन, क्योंकि वो कोई किसी के हाथ में भी है तो वो क्लेम करेगा। बट अगर आपने स्पेसिफिकली किसी का नाम ऐड किया है तो सिर्फ उसी को ही पेमेंट मिलेगी। जैसे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 2 फॉर्मेट आपको करवाए हैं, एक ये फॉर्मेट देखिए, इसमें उसने कहा मुझे पे करने को, प्लीज अंडरस्टैंड। सो विकास, निश्चय एंड थर्ड पार्टी पेई are involved in this. So Vikas is a drawer as well as pay. निश्चय is a drawee. बट यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया संजीव को पे करने को, लिखना जरूरी है। अगर ये नेम नहीं लिखा तो जिसके हाथ में भी है वो इस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। सो संजीव मेंशन करने के साथ ही इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज ऑर्डर गिवन बाय राशिद टू गोविंदा टू मेक द पेमेंट टू संजीव। तो अगर आपका ये जो बेयरर है, बेयरर के केस में ये ड्रॉ नहीं होगा, बट अगर ये ऑर्डर है तो ऑर्डर के केस में नेम मेंशन करते जाओ, इट कैन बी ड्रॉन एन नंबर ऑफ टाइम्स,
राइट? यस मैम। नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट। एक नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग प्रोसेस होता है बच्चे। यस, ये क्या है? ये एक लीगल प्रोसेस है कि अगर आपकी अमाउंट डिसऑनर हो गई है तो उस केस में आपको एक अथॉरिटी के पास जाके ये करवाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करवाना पड़ता है किस डेट का था, किस डेट को हुआ। तो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें रजिस्ट्रार जो है वो सब बिल्स का नोट करता है। अगर प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हुआ है तब प्रोटेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तब रजिस्ट्रेशन या लीगल इज नॉट रिक्वायर्ड। आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था इस पॉइंट में कि ही इज इमीडिएटली इन्वॉल्व, तो नोटिस नहीं भी देगा तो वो स्यू कर सकता है डायरेक्ट। बट अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया तब इसकी राइटिंग में एक एंट्री, जिसको बोलते हैं एक रजिस्टर लगाया होता है, उसमें पूरा एंट्री होती है, वो रिकॉर्ड होने के बाद नोटिस जाता है, नोटिस के बाद वो स्यू होता है। सो डायरेक्ट स्यू नहीं कर सकता पेई जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, डायरेक्ट स्यू नहीं कर सकता जैसे कि प्रोमिसरी नोट में पेई कर सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। तो अगर आपका प्रोमिसरी नोट डिसऑनर होता है तो देर इज नो नीड टू हैव नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। बट अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तो आपको देखना पड़ेगा किस कंट्री का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ है। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। एज ऑफ नाउ अभी आप समझ लीजिए कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आपका डिसऑनर होता है तो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज मस्ट। बट अगर प्रोमिसरी नोट आपका डिसऑनर होता है तो नोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यस मैम। कॉपीज नॉट एट ऑल ड्रॉन। आपको कॉपीज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक प्रॉमिस किया है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है, तो आपकी अपनी कॉपी इज सफिशिएंट, और कॉपी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे इट कैन बी ड्रॉन फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे आप ड्रॉर ने ड्रॉई को दिया, ड्रॉई का पेई को दिया, तो 3-4 कॉपीज, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। ड्रॉई का कॉन्ट्रैक्ट है, ड्रॉई पेई का कॉन्ट्रैक्ट है, ड्रॉर एंड पेई का भी हो सकता है। सो कॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स मे बी इनहेंस्ड। बट ये तो एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें और कॉपीज की जरूरत नहीं है, तो और नहीं ड्रॉ होता। मेकर के पास अपनी कॉपी है और पेई के पास अपनी कॉपी है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मे बी ड्रॉन राइट ऑन डिफरेंट नेम्स। प्रोविजन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, दिस इज मस्ट। राइट बच्चे? यस, just tell me in case any doubt is there. No ma'am. Okay, so we'll discuss types of bills tomorrow with you, right? Please log into IMCRP, your test is ready. Okay, Thank you ma'am. thank you Thank you, ma'am. so much, thank you, Thank you, ma'am. thank you.